All of you. Hi, how are you? I hope you all are safe and watching the videos regularly. And I must remember that we have met with your parents in the online PTM. So I hope you must have done the things very well. Now in after that we will continue our topic, that is the chapter soil. And in the previous video we have done the topic, that is your we have done the soil profile. Now in this video we will do the types of soil. So we have done the types of soil, we have done the soil profile. Now we will do the types of soil. So there are four types of soil, that is clay, loamy soil, sand and silt, as you can see in the diagram. So you can see that we have different types of soil and different color, different textures we can see over here. So the first one we will discuss over here is the sandy soil. So sandy soil has a big particles that have a large spaces between them. अब sandy soil क्या है? ऐसी soil है that जो बहुत बड़े particles contain करती है and उसमें बहुत सारी space होती है. Now you can see in the sand one there are big particles you can see over here कि यहाँ पे उबड़ खाबड़ सॉइल आपको दिख रही है. द स्पेसिस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर. अब इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो एयर से फिल्ड हो जाती है. दैट्स वाई इट इज़ वेल एरेटेड. एंड इफ इट इज़ वेल एरेटेड इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट, इट डज नॉट अलाउ वाटर टू होल्ड. ओके, दैट मीन्स वाटर अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकती. एंड जब वाटर होल्ड नहीं होता so वाटर कम्स टू द or it can be penetrated through the particles of sand. Because of large spaces, water can easily penetrate through the particles of sand. Sandy soils, however, cannot hold water. This is the basic difference between sandy soil and the clay soil. Next, hence sandy soils are light, aerated and dry in nature. Sandy soils light होती है, हवा aerated means air contain करती है और dry होती है. It is just similar to your desert soil. Okay, sandy soils lack much nutrients, hence do not support the diverse growth of plants. सैंडी सॉइल के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसी वजह से वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती. आप सबने देखा है डेजर्ट एरिया में सैंड पड़ा होता है, सैंड ड्यून्स होता है. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ सैंडी सॉइल. Now the next one we have the clay soil. So the clay soil, it consists of fine particles which have less space between them. Clay soil, if we see in the diagram, वो क्ले सॉइल ब्राउन कलर की दिख रही है, इसमें कोई पार्टिकल स्पेस नहीं है एंड पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. ओके, लाइक इट इज़ यूज इन मेकिंग अर्थन पॉट्स, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के दिए बनाने में यूज़ होते हैं आपके. सो इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स विच हैव लेस स्पेस बिटवीन देन. Since there is not much space between the particles, clay soil are not well aerated. अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं होगा तो हवा नहीं जाएगी और हवा नहीं जाएगी तो उसमें एरेशन नहीं होगी. सो अगर एरेशन नहीं है, हवा नहीं जाए तो क्या करेगी, वाटर को होल्ड करके रखेगी एंड वाटर को अपने अंदर में से अपने पास में से पास होने की परमिशन नहीं देगी. सो since there is not much space between the particles, clay soil are not well aerated like the sandy soils. The tiny gaps between the particles although allow absorption of water. Gaps कम है, छोटे छोटे गैप्स हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कराती है एंड ईजिली पास करता है वाटर, इसमें से ईजिली होल्ड करके रखते हैं वाटर को, एब्जॉर्ब करता है ये वाटर को. सो दे आर एबल टू होल्ड वाटर, हैंस आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट. वाटर को होल्ड करके रखता है तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन क्ले सॉइल इज योर कॉटन. ओके, next we have the loamy soil. Loamy soil contains a similar amount of large and small particles in them. लोमी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स भी हैं, स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स सैंड और क्ले का मिक्सचर है ये. ओके, साइड बाय साइड इट इज ऑल्सो कंटेन सिल्ट सॉइल्स. दे ऑल्सो कंटेन ह्यूमस. ह्यूमस भी होता है. ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है आपका. ठीक है, अब जब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर है, दे कैन होल्ड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स. वाटर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में होल्ड करके रख सकता है, देयरफॉर इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर. अब सब कुछ कंटेन कर रहा है तो एग्रीकल्चर सॉइल है. एंड यहाँ पे फर्टिलिटी भी है, मीन्स इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स है. सॉइल फर्टाइल देगी एंड प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, देयरफॉर इट ग्रो प्रॉपरली.
They contain good amount of calcium and have a high pH level. Okay. Next we have silt soil. The silt soil particles are smaller than clay soil and smaller than the sandy soil but larger than the clay soil. मीन्स छोटे हैं सैंडी से बट बड़े हैं क्ले से, तो इन बिटवीन हो गया ये. सिल्ट सॉइल वाटर को कंट्रोल कर सकता है बट एक लिमिट तक, ज़्यादा देर तक ये कंट्रोल नहीं कर सकता. ओके. नाउ दे आर जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज. ये जो सॉइल मिलती है आपको वाटर बॉडीज़ के पास या रिवर बैंक्स के पास या लेक्स के पास मिलती है. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. हाईली फर्टाइल होते हैं. सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. दे आर ऑफन मिक्सड विद अदर सॉइल्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. आप यहाँ पे मिक्सिंग कर सकते हो दूसरी सॉइल के साथ सो दैट यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द सैंड, क्ले एंड सिल्ट सॉइल. ओके. नाउ यू कैन सी सैंड है, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, स्पेसिस है बीच में. सिल्ट में पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, बीच में मिक्सिंग है. क्ले में पार्टिकल साइज में गैप्स अवेलेबल नहीं है. सो द नेक्स्ट वन वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ soil. Now we were doing properties of soil. The first property of soil is texture. The first property is your texture. Now the texture is the size of particles of the soil. Texture क्या है? Size of particles बताता है कि कितने बड़े particles हैं, कितने छोटे particles हैं. Next, different soils के different textures होते हैं, जैसे अभी हमने देखा sand, silt, clay and loamy soil में. Next we have second property that is color. So different color soils have different colors. जैसे भी हमने देखा सैंडी सॉइल का कलर डिफरेंट था, लोमी का अलग था, क्ले का अलग था. So it was all because of the presence of different minerals and nutrients in the soil. Like if we say that some soils are black in color, it was all because of the excess amount of humus and minerals present in the soil. And some are red in color, it was all because of the large content of iron in the soil. Okay. So next we have pH of a soil. pH of a soil means कि कितना soil acidic है, कितना basic है, कितना neutral है, उसी के according plants properly grow करते हैं उसके अंदर. Next, air content is the next property. Since soil is made up of particles of different sizes, these particles can be loosely bound or tightly bound. Means अलग अलग soil में अलग अलग particle size होते हैं, उसी के according वो air को trap करते हैं. जैसे sandy soil well aerated थी और clay soil लेस एरेटेड थी और लीस्ट एरेटेड थी, उसी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को बाइंडिंग करके रख रहा है अपने साथ. सो द एयर ऑफन ऑक्यूपाइज द स्पेस इन बिटवीन दिस पार्टिकल्स. एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन सॉइल्स के अंदर. सो वी हैव डन 4 properties. Some of the properties are being left that we will do in the next video. So in this video we have done types of soil and the properties of soil. That's all for today. Thank you and have a nice day.